Hello everyone. Today we are going to study Strength of Materials, Chapter 1, Simple Stresses, Strains and Elastic Constants. Today we are going to study 2 points. 2.1, Concept of elastic body, definition of stress, strain, types of stresses and strains. 2.2, Hooke's law, elastic limit, linear and lateral strain, Poisson's ratio. Concept of elastic body. An elastic body is one which regains its original shape and size after the removal of applied load, provides the stress does not exceed the elastic limit. इलास्टिक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसमें ना उसकी साइज एंड शेप जो ओरिजिनल है वो रीगेन हो जाता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड. In simple stresses and strain, basically there are tensile, compressive and shear type of loads which are acting on a body, and the body deforms proportionally to applied load within the elastic range. इसका मतलब यह है कि इलास्टिक रेंज में बॉडी डिफॉर्म होती है प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड लोड ओनली इन इलास्टिक range. And the relation between stress and strain in this region follows Hooke's law. इलास्टिक रेंज में Hooke's law follow होता है. Stress is directly proportional to strain that we are going to see in subsequent slides. What is the example? A steel rod under tension elongates slightly but returns to its original length once the load is removed as long it is in elastic limit. मतलब elastic limit में अगर है ना लोड अप्लाई किया स्टील रॉड पे तो वो इलोंगेट होता है, लेकिन अब आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड वो उसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन करता है. Next point, definition of stress strain. Stress, the internal resisting force set up per unit area. It means that it is a ratio of internal resisting force per unit cross-sectional area. What is P? P is applied load, you can see here, and A is cross-sectional area. And stress, basically it is denoted by symbol sigma. Next, strain. Strain, it is denoted by epsilon. This is called as epsilon. What is strain? It is the ratio of change in dimension to the original dimension of the body under stress. Strain क्या है? वो ratio है change in dimension और original dimension का. So basically you can see the formula epsilon. It denotes strain, which is ratio of change in length to the original length. Delta L is change in length and L is original length. Next point is types of stress. So basically there are three types of stress. First is tensile stress. You can see this figure. What is actually happening? You can see the object in which load is applied away from the body. So when the load is applied away from the body, the stresses induced in the body is called as tensile stress. मतलब अगर बॉडी के दोनों साइड तरफ से ऐसा लोड अप्लाई किया होगा जिसकी वजह से बॉडी पुल हो रही होगी तो उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं. बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेस से होता क्या है, उसकी लेंथ बढ़ती है. और फॉर्मूला इसका क्या है? सिग्मा टी, दैट टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया. हियर लोड इज टेंसाइल लोड. नेक्स्ट टाइप इज compressive stress. You can see here this figure. What actually is happening? Load is applied towards the body. It means that due to application of compressive load, your body is going to get compact. So in this case there is pushing force is acting on the body and due to which there is reduction in length. उसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा सी मीन्स compressive stress equal to compressive load upon area. Okay, basically stress it is load upon area. So if we talk of the unit of stress, so P का यूनिट क्या है, लोड का यूनिट क्या है, न्यूटन. एरिया का यूनिट क्या है, mm square. So the unit of stress is Newton per mm square. Okay. Next type is shear stress. You can see this figure. Shear. What actually happening in this case? There is basically on object tensile load is applied. So due to which shearing action takes place, and it causes sliding of the object. That is shape distortion. उसका फॉर्मूला इसको टाउ बोलते हैं. It is shear stress, which is the ratio of shear load upon shear area.
Next point is types of strain. There are three types of strain. First type is tensile strain. It is denoted by epsilon T. You can see this figure. इस फिगर में क्या हो रहा है? टेंसाइल लोड अप्लाइड किया है. टेंसाइल लोड अप्लाई करने की वजह से व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका है ना लेंथ बढ़ता है. टेंसाइल लोड अप्लाई करने से उसको इंक्रीज इन लेंथ. सो टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ. इस केस में चेंज इन लेंथ क्या है? इंक्रीज इन लेंथ है. जो भी लेंथ बड़ी है उसको हम चेंज इन लेंथ बोलेंगे. So it is a ratio of increase in length per unit original length. Next type is compressive strain. उसको हम इप्सिलॉन सी से डिनोट करते हैं. वो सेकंड फिगर ये है compressive strain. compressive लोड के कारण ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कम होती है. सो देर इज डिक्रीज इन लेंथ. सो compressive strain क्या है? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ. इस केस में चेंज इन लेंथ क्या है? डिक्रीज इन लेंथ. ओके. And third type is shear strain. It is denoted by gamma. So what actually happening? This is shearing action. तो basically होता क्या है? जब हम एक ऑब्जेक्ट, so say this is one object. यहाँ पे जब टेंजेंशियल लोड अप्लाई होगा तो टेंजेंशियल लोड अप्लाई होने के कारण देयर विल बी चेंज इन शेप ड्यू टू स्लाइडिंग. बेसिकली ड्यू टू स्लाइडिंग. और यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा. उसको हम क्या बोलेंगे? shear strain. Basically, it is denoted by gamma equal to tan theta, and tan theta is equal to theta for small angles. Next topic is 2.2 Hooke's law, elastic limit, linear and lateral strain, Poisson's ratio. Hooke's law. Basically, Hooke's law states that within elastic limit, stress is directly proportional to strain. Hooke's law क्या कहता है कि इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेस जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. एंड व्हाट इज ई? ई इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. उसको हम यंग्स मॉडुलस बोलते हैं. यू कैन सी हियर ई इक्वल टू यंग्स मॉडुलस. इट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. एंड सिग्मा इक्वल टू स्ट्रेस एंड इप्सिलॉन इक्वल टू स्ट्रेन. अब इलास्टिक लिमिट क्या है? व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? इट इज अ लिमिट जिसके पहले अगर लोड अप्लाई किया तो बॉडी उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करती है जब हम लोड रिमूव करते हैं. उसके बाद इलास्टिक लिमिट के बाद क्या होता है? प्लास्टिक फेज चालू होता है. इसमें है ना प्लास्टिक फेज में अगर हमने लोड अप्लाई किया इलास्टिक लिमिट के आगे तो और लोड रिमूव करने के बाद उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं होता है. उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं. As I said, beyond this point, there is permanent deformation occurs. And elastic phase के बाद उसको हम plastic phase बोलते हैं. So basically, if you see of ductile material, इसको हम elastic phase बोलेंगे. जिसमें ना स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है. और ये जो फेज है उसको हम इलास्टिक फेज बोलेंगे. दिस इज इलास्टिक फेज एंड दिस इज प्लास्टिक फेज. Next is linear strain. What is linear strain? Basically, it is the ratio of change in length to the original length when subjected to axial load. मतलब एक ऑब्जेक्ट है अगर उसका एक्सियल लोड अप्लाई किया तो उसके वजह से जो भी है ना लेंथ में चेंज होगा. लेंथ बढ़ेगी अगर टेंसाइल लोड होगा तो वो चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ जो उसकी है उसके रेशियो को लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं. और इट इज डिनोटेड बाय इप्सिलॉन एल. इप्सिलॉन सफिक्स एल. नेक्स्ट डेफिनेशन है लैटरल स्ट्रेन की. उसको हम डिनोट करते हैं इप्सिलॉन लैटरल से. व्हाट इज लैटरल स्ट्रेन? सपोज दिस इज वन ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है और उसको हमने टेंसाइल लोड अप्लाई किया अगेन. सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि ये डायरेक्शन में, से दिस इज थिकनेस और विड्थ. अगर सर्कुलर बार होगा तो इसको हम डायमीटर बोलेंगे. से दिस इज सर्कुलर बार. उसको है ना टेंसाइल लोड अप्लाई किया तो टेंसाइल लोड की वजह से क्या होगा? ये ओरिजिनल डायमीटर है.
लेकिन स्ट्रेच होने के बाद उसका डायमीटर कम हो जाएगा, देर विल बी रिडक्शन इन डायमीटर ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ। और लेंथ क्यों बढ़ रही है? टेंसाइल लोड अप्लाइड किया है इसलिए। तो दिस विल बी change in diameter, decrease in diameter, and this is original diameter. So epsilon lateral is the ratio of change in diameter to the original diameter. और रेक्टेंगुलर बार हुआ तो विड्थ और थिकनेस में चेंज होता है। तो कीप इन माइंड, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। लैटरल स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लैटरल डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। लैटरल डायमेंशन कौन सा डायमेंशन होता है? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, दिस इज एक्सिस। और परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस रहेगा, ये एक्सिस, उसमें उसके साइड में जो डायमेंशन का चेंज होगा उसे हम लैटरल स्ट्रेन ऐसा बोलते हैं। डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइजन्स रेशियो। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। पॉइजन्स रेशियो का डेफिनेशन क्या है? इट इज रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। पॉइजन्स रेशियो क्या है? लैटरल स्ट्रेन का और लीनियर स्ट्रेन का रेशियो है। बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी स्ट्रेन है। इट मीन्स दैट देयर विल बी नो यूनिट फॉर पॉइजन्स रेशियो। और नेगेटिव साइड इंडिकेट करता है कि लैटरल स्ट्रेन की जो डायरेक्शन है, इट इज अपोजिट इन नेचर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन कैलकुलेट पॉइजन्स रेशियो फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। पॉइजन्स रेशियो अलग अलग क्रॉस सेक्शन के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर सर्कुलर बार हुआ तो पॉइजन्स रेशियो क्या है? लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन उसका क्या होगा? चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। ये डायमीटर में जो चेंज है वो लैटरल स्ट्रेन इंडिकेट करता है इन केस ऑफ सर्कुलर बार। सो लैटरल स्ट्रेन इज चेंज इन डायमीटर टू दी ओरिजिनल डायमीटर। और लीनियर स्ट्रेन क्या रहेगा? टेंसाइल लोड की वजह से जो भी है ना, लेंथ में चेंज हुआ है, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये हो गया सर्कुलर बार का केस, जिसमें लैटरल के लिए डायमीटर कंसीडर किया है। अगर रेक्टेंगुलर बार की बात की जाए तो फिर ये रेक्टेंगुलर बार है बिफोर अप्लाइंग लोड। आफ्टर अप्लाइंग लोड क्या हुआ है? इसका लेंथ बढ़ा है। ओके, और विड्थ भी है। विड्थ में क्या चेंज हुआ है? उसका विड्थ कम हुआ है। सो फॉर रेक्टेंगुलर बार लैटरल स्ट्रेन क्या होगा? अगर विड्थ के बारे में हमने सोचा, सो डेल्टा बी अपॉन ओरिजिनल बी। डेल्टा बी क्या है? चेंज इन विड्थ। और बी क्या है? ओरिजिनल विड्थ। और लीनियर स्ट्रेन क्या होगा? जो भी चेंज इन लेंथ है, यानी कि डेल्टा यल अपॉन यल, दैट विल बी लीनियर स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा बी अपॉन बी। थैंक यू।